Assalamualaikum dear students, I hope all of you are fine. Today our lecture is about lesson number 3, bromides and sulfides. First of all, we must look at the title. What does the title suggest? We may think that the title is suggesting something about chemical compounds in the periodic table of chemistry, but this is not about chemical analysis. This essay is actually a psychological analysis of the people of the world by Khaled Burgess, who was a very famous American humorist. This essay which we are going to study today, it has been extracted from his famous book Are You a Bromide? Basically, in this essay, the writer has divided mankind on earth into two main classes, bromides and sulfides, according to their peculiar traits, characteristics and features of their personality and character. So let's move on to the first category the writer has used for the majority of the people on earth, that are bromides. According to the writer, the entire human beings on earth can be divided into two specific groups on the basis of their attitudes, ideas and behavior. In this context, the writer has successfully used the device of contrast to differentiate between these two groups. He has also tried to authenticate his argument by quoting the most important personalities of the world, their thoughts, attitudes, mental inclinations from history, politics, art, and literature. According to the writer, when we study the characteristics, qualities, or traits of bromides, first of all, we come across that what is bromide? Bromide is literally a chemical compound of bromine, a non-metallic element that is used in the medicine to calm the nerves, or we can say that it has been used in various preparations as sedative medicines, a commonplace bore, trite remark और कन्वेंशनलिज्म, यानी सुकून आवर जो अद्विया होती हैं, सुकून पहुंचाने वाली, आराम करवाने वाली, उनके लिए उनमें ये ब्रोमाइड कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है. So let's see who are the bromide people according to the writer, what kind of characteristics they have. According to the writer, a bromide is a person whose thoughts and conversation are ordinary and conventional. ऐसे लोग जिनके ख़यालात और गुफ्तगू बहुत ही आम और रवायती किस्म की होती है, वो ब्रोमाइड की कैटेगरी में आती हैं. जो ब्रोमाइड लोग होते हैं, दे ऑलवेज़ फॉलो द वेल वॉर्म पाथ्स ऑफ लाइफ, यानी ऑलरेडी दे जो बन चुके हैं, ख़यालात, रवायात मौजूद हैं सोसाइटी में, दे फॉलो कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड फैशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, दे कन्फॉर्म टू द सोसाइटी. वो डेविएट नहीं करते, वो रिबेल नहीं, दे आर नॉट रिबेलियस, दे थिंक इन अ सिमिलर वे, दे बीइंग फिलिस्टीन और कंजर्वेशंस. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जैसे जाबिर, क़दामत पसंद या बेजार कुन वगैरह. ब्रोमाइड डज हिज थिंकिंग बाय सिंडिकेट. ब्रोमाइड की जो सोच होती है वो इज्तमाही होती है. वो आम तौर उन्हीं रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी चलती है, यानी क्राउड के साथ पर चलना पसंद करते हैं. वो इंडिविजुअलिटी जो है उन्हें पसंद नहीं होती. दे मोस्टली ट्रैवल द रोड्स ही गोज़ विद द क्राउड. इन अ वर्ड, दे ऑल थिंक एंड टॉक अलाइक. वन मे प्रेडिकेट देयर ओपिनियन अपॉन एनी गिवन सब्जेक्ट, यानी वी कैन प्रिडिक्ट देयर एटीट्यूड्स अबाउट एनीथिंग. हम उनके रवैये के बारे में पहले से प्रेडिक्शन जो है ना वो कर सकते हैं. सो ब्रोमाइड्स आर पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट बाय फार द लार्जर ग्रुप ऑन दिस अर्थ. दे आर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉब मेंटालिटी. जो मजमूई एक माशरे का एक रुझान है, ज़हनी ख़यालात हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं. दे पोजेस एवरेज इंटेलिजेंस. उनकी जो जहानत होती है वो बहुत ही एवरेज होती है. एंड दे लिव बाय रूल एंड रूट. They are unenlightened and unsophisticated. They accept the ordinary acts of life as essential. Bromide के लिए is not only unnecessary to think but almost impossible. वो कोई नई चीज़ जो है ना वो सोचना पसंद नहीं करते. उनके जो intellectual processes हैं they are automatic. His train of thought can never get off the track. ठीक है, वो अपने रास्ते से हटते नहीं हैं. They usually obey
the set rules and regulations as routine matters. Or writer के accordingly the bromides are majorly मटीरियलिस्टिक, मादा परस्त होते हैं सोसाइटी में. जैसे ये पिक में भी आप देख सकते हैं. जैसे यानी उनकी सोच जो है बहुत सतही होती है. दे आर ग्रीडी, दे आर लुक्रेटिव. जैसे शादी ब्याहों पे जाएं, हम देखते हैं कि अभी खाना शुरू नहीं हुआ होता, बहुत से लोग पहले से प्लेट्स लेके खड़े हो जाते हैं. या बहुत लोग जिनके अंदर ख्वाहिश है मेरे पास और हो. ग्रीड यानी उनके अंदर ग्रीड होती है, जो दूसरों के पास होता है वो भी हमें मिल जाए, वो भी हमारे पास आ जाए. वो उनके अंदर सेक्रीफाइस करने का जज्बा नहीं आता, वो दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहते. दे हैव नो ओरिजिनलिटी, उनके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती. बट द हैबिट टू मेक अ रिमार्क, ठीक है. उनके अंदर दे आर डिवाइड ऑफ एक्टिंग इमोशनली और एस्थेटिकली. दे हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी, उनके अंदर किसी चीज़ को सराहने की जो अहलियत है वो भी नहीं होती. A bromide cannot read to an artistic piece emotionally. He must feel, think and act in a usual way. वो रूटीन में जैसे सारे आम लोग सोच रहे होते हैं वो वैसे ही सोचना पसंद करते हैं. और according to the writer, a bromide cannot change himself. He is unable to change himself. वो अपने आप को चेंज करना पसंद नहीं करते. They don't try to change the traditions in society as well. They go with the world. जैसे दुनिया चल रही है वो वैसे ही चलना पसंद करते हैं, उसके साथ आगे पीछे होना पसंद नहीं करते. और अकॉर्डिंग टू द राइटर, दे हैव देयर हेयर कट एवरी मंथ एट द रेगुलर टाइम. और वो हर मंथ जो एक हेयर कट लेते हैं. और मूविंग ऑन, वी कैन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट दे गो टू देयर ऑफिस एट रेगुलर आवर्स. दे वर्शिप रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे आर वेरी ओबीडियंट टू देयर डॉगमास. डॉगमास मीन्स बिलीव्स. अपने अकायद के साथ बहुत ज़्यादा वो ओबीडियंट होते हैं. दे लीड अ वेरी डल एंड मैकेनिकल लाइफ. दे आर वेरी मैकेनिकल पीपल. And according to Burgess, bromide is dull to the sense of beauty. Or an artist and beautiful picture fails to produce an emotional response in him. The scene of sunset painted in a picture fails to produce any response in him. यानी अगर हम उसे किसी खुली फ़ज़ा में ले जाएं, एक हसीन वादी में ले जाएं, किसी ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक सीनरी में ले जाएं, तो उसका उस पर कोई असर नहीं होता. वो अपने यानी उसमें कोई नए ख़यालात, कोई स्टिमुलस, कोई मुहर्रक जो है ना, उसके अंदर कोई नई चीज़ जो है, नई सोच उजागर नहीं हो पाते हैं. ब्रोमाइड्स आर बेसिकली कन्वेंशनल काइंड ऑफ मैन. वो रस्मी किस्म के इंसान होते हैं. दे आर अनएबल टू क्रिएट न्यू थिंग्स. देयर ब्रेन कैन नॉट इन्वेंट न्यू थिंग्स. दे हैव नो न्यू आइडियाज़ इन लाइफ. हियर दे आर यूज्ड टू ऑफ कॉमन थिंकिंग. दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल. दे ओनली थिंक अबाउट दैमसेल्व्स. यानी वो खुद गर्ज होते हैं, लालची होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर ब्रोमाइड्स. मेजॉरिटी जो है ना, दे ऑल थिंक एंड टॉक अलाइक. ज़्यादातर जो लोग होते हैं दुनिया में वो एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे ही दिखना पसंद करते हैं. सो वी कैन से दैट ब्रोमाइड्स आर कॉमन ऑर्डिनरी पीपल who follow the set traditions of society blindly. वो blindly अंदर कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए सेट कर दी है. दे कन्फर्म टू द ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी एंड वी कैन से दैट दे हैंकर आफ्टर मटेरियल बेनिफिट्स. पागलों की तरह वो दौड़ते हैं, जहाँ पे उन्हें मादी फ़ायदा नज़र आता है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, चाहे वो किसी का दूसरा का कितना ही नुकसान क्यों ना हो, चाहे वो बिज़नेस हो, लाइफ हो, कहीं भी कोई भी मैटर हो लाइफ का. दे आर वेरी डल एंड दे आर बोरिंग पीपल. They don't attract the others. So all of these are the qualities which have been mentioned in this essay by Burgess Kellett. Or he also says that bromide makes a remark as fresh, new and apt thing in an expectation of approval. In simple, a bromide is always with us. He can't change himself. अब वो ये भी कहता है कि हमारे साथ ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ब्रोमाइड होते हैं हमारे साथ, मतलब दे आर विद अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. वी कांट गेट रिड ऑफ देम. हम उनसे जो है वो निजात हासिल नहीं कर सकते. ही हैज़ गिवन एग्जांपल्स फ्रॉम मैनी फेमस पीसेस ऑफ लिटरेचर. एंड ब्रोमाइड्स आर कॉमन एंड ऑर्डिनरी पीपल. लाइक कहते हैं कि अमेरिका का जो सदर था रूजवेल्ट, ही वॉज ऑल्सो अ ब्रोमाइड. ठीक है. Okay class, I hope so we must end it here. Today we have discussed all the important traits, characteristics or salient features of bromides according to the bromide group, which have been divided by
Gellidt-Burgess. In the next lecture, inshallah, we will discuss the important traits of sulfides, how they are different from bromides, what are their characteristics. ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.